Hello everyone, I Rachna Sharma welcome you all to my YouTube channel Food Tech Geeks, where I upload videos, lectures and tutorials related to food science and technology. So this video is going to be a demo video where I will be showing you the working of a fluidized bed dryer. So let's start the video. So before going into the demo part, let's first have a basic understanding of the topic. So we all know we usually go for drying of fruits and vegetables to remove its water and to increase its shelf life. By removing the water, we can inhibit the microbial growth, we can inhibit the enzymatic activity, and also drying of fruits and vegetables help into the storage and transportation of bulky fruits and vegetables. So there are a lot of methods for drying of fruits and vegetables, but here we will be discussing about fluidized bed dryer. So fluidized bed dryer is an equipment which is used to dry the powders or small size particle samples, and this is basically used in pharmaceutical and food industry. So the working principle of fluidized bed dryer is fluidization of static solid particles. So we know the fluid is any substance which can flow. So here in this fluidized bed dryer, the solid particles come into the contact with air and then they flow with the air, and that is why we can say that the solid particles has converted into fluid. As the solid particles are converted into fluid, therefore this dryer is known as fluidized bed dryer. So here in this picture also you can see, here we have a porous plate on which our sample is poured. Here we take our sample on this plate which is porous, and from the down of the plate hot air is passed at a certain velocity. So when the solid particles come in contact with the air, they get started to convert into fluid, they get converted into a fluid and they flow with the air, and as the solid particles have converted into a fluid, it is known as fluidized bed dryer. So what happened here is that the solid particle get into contact with the hot air, and due to this contact the water is evaporated from these particles, and due to the evaporation of water the particles get dried up. So this is the basic working principle of fluidized bed dryer. So there are certain advantages and certain disadvantages of a fluidized bed dryer. If I talk about advantages, so there is a high rate of moisture removal, because as the particle size is very small, so their surface area increases and there is a better removal of moisture. Also there is a high thermal efficiency, low capital and maintenance cost. The drying time is very less because the particle size is less, so there will be better contact with the hot air and there will be better removal of moisture, and it will take lesser time and it is easy to control. In spite of these advantages, there are certain disadvantages, which includes if the sample is wet, so there will be poor fluidization and therefore there will be less efficiency of drying. Also we cannot go for solvent removal by this method. Here if we want to remove organic solvents from our sample, we cannot go for fluidized bed drying, and also we can only use this method to dry the fine particles. If our sample size is large, we cannot go for this drying method, and there may be a problem of agglomeration when the sample size is very fine. So these are certain disadvantages of fluidized bed dryer. So in this video our focus will be on the model number TG200. So TG200 looks like this, where we have a glass or a stainless steel jar where we put our sample, and there is a control slab. And then here what happens, when we place our sample from the lower side, the air will be blown up, which will come into the contact with the solid particles, and then they will flow with the air, and then they convert it into fluids, and that's how they get dried up. And from this cloth, which is membranous, the vapors and the hot air comes out, and this is how our solid particles get dried up. So this was all about the theory part. Now let's move on to the practical part, where I will show you how a fluidized bed dryer works. So let's start that part.
सो दिस इज हाउ आर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर लुक्स लाइक। ये हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। इसकी वर्किंग जो इसका थ्योरी पार्ट है वो अभी हमने कवर कर लिया है, तो अब इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमें अपना सैंपल रखना होता है। ये दोनों साइड से हुक होते हैं जिसकी वजह से खुलता है, और ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये है इसकी मॉनिटरिंग वाली। यहाँ से आप अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर, एयर फ्लो और उसका जो इंटरवल ऑन ऑफ अगर आपने करना हो, और जितना भी टाइम आपको चाहिए, तो ये सारे जो भी आपके कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए होते हैं। अब है हमें इसको ऑपरेट कैसे करना होता है। तो ऑपरेट के लिए ये जो दोनों होते हैं, इनसे हमें इसको लिफ्ट करना होता है ताकि हमारा कंटेनर बाहर आ सके। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा से लिफ्ट करते हैं, इसको पुल करो ऊपर और इसको यहाँ पे छोड़ दो। ये जो हमारा कंटेनर है ये अंदर से ऐसा दिखता है। इसमें ये जो नीचे सीव लगी हुई है, क्योंकि इसी सीव की वजह से यहाँ से ही नीचे से एयर आती है, जिसकी वजह से जो हमारा सैंपल है वो फ्लूइडाइज्ड होगा उस एयर की वजह से। तो ये पहले इसको हमें साफ करना होता है। ये क्लीन मैंने कर लिया है। अब हम इसमें अपना डालेंगे सैंपल। जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटे साइज का होना चाहिए ताकि वो इजीली उसमें फ्लूइडाइज्ड हो सके, उसका जो एयर से वो अच्छे से हो सके। तो इसमें हमने सैंपल अंदर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज पील का सैंपल ले रखा है। तो इसमें क्या हमने किया, ज़्यादा सैंपल नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा कम सैंपल डालना होता है ताकि अच्छे से सारे पार्टिकल्स एयर के अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ सकें। तो इसको अच्छे से यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देना है इसके अंदर। ये हमारा सैंपल तैयार हो गया। अब हमें इसको इस पर लगाना है। तो वो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको इसको ऐसे घुमा के देखना है कि ये नीचे इस प्लेट के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। ये पूरा यूनिफॉर्मली फिक्स हो गया है। अब हमें इसको अपने इस लिड को क्लोज करना है। इसको कैसे क्लोज करना होता है, इसकी एक टेक्निक होती है। जो ये नीचे वाला नोब दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट करना है। ये आपने लिफ्ट किया। अब आपको ऊपर झटके से इसको नीचे लेके आना होता है। कैसे, इस तरीके से आपको ये क्लोज करना है। लेकिन अभी हमें इसको देखना है कि ये सही से क्लोज हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये जो सील है यहाँ से आपको देखना होगा कि ये जो है ये दोनों अच्छे से सील हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद आपको इसे लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए ये जो दोनों हैंडल्स दिए हुए हैं इनको आपको प्रेस करना होता है ऐसे, ये हो जाएगा लॉक। अब ये लॉक हुआ या नहीं हुआ, इसको कैसे चेक करना है, इनको पकड़िए और इसको अच्छे से घुमा के देखिए। जितनी आप ताकत लगा सकते हैं उस ताकत से आप इसको इसे हिला के देखिए। ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से लॉक हो चुका है। ये लॉक करना ज़रूरी क्यों है, अगर ये यहाँ से अच्छे से लॉक नहीं हुआ, अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा, जब एयर फ्लो होगा, तो आपकी जितनी भी एयर है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी और उसकी वजह से आपका जो सैंपल है वो इफिशिएंटली ड्राई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ये लॉक हो जाए। ये लॉक हो चुका है हमारा अच्छे से। अब हम इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो मेन स्विच ऑन करेंगे। तो मेन स्विच ऑन करने पे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको अपना टेम्परेचर और अपना टाइमर सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप सेट पे जाएंगे, फिर आप अपना टेम्परेचर करेंगे। मुझे यहाँ पे टेम्परेचर करना है 60 डिग्री, तो मैंने इसको बढ़ा के क्या 60। एयर फ्लो मेरा ज़्यादा है 75, मुझे कम करना है क्योंकि मेरा सैंपल कम है। एयर फ्लो हमें अपने सैंपल के हिसाब से करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सैंपल यूज़ कर लिया है तो आपको एयर फ्लो भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बट मेरा सैंपल कम है तो मैं एयर फ्लो को भी कम कर देती हूँ। ये भी मैंने कर दिया है 60 पे। उसके बाद टाइम, तो मुझे अपने टाइम रखना है इसमें 30 मिनट्स का, या अभी हिट एंड ट्राई के बेसिस पे तो मैं भी 25 मिनट का रखती हूँ। अगर आपको बिल्कुल पता है, रिसर्च पेपर से आप इसमें से देख रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर उतना ही फिक्स करना होता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो हिट एंड ट्राई मेथड से करते हैं। तो हमने सारा सेट कर लिया है। देन वी विल सेट इट एंड देन वी विल स्टार्ट दिस। तो 25 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको स्टॉप करेंगे और फिर इसको खोलेंगे। तो स्टॉप करने के लिए आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये हो गया स्टॉप। अब हम इसको यहाँ पे खोलेंगे, वहाँ से स्विच ऑफ करेंगे और अब इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे।
अब अपना सैंपल देखते हैं कितना हुआ ये ड्राई। देखो ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, ये ब्रेक हो रहा है, ये ड्राई हो चुका है। अब आप अपने हिसाब से कि कितना आपको इसको ड्राई करना है, आप इसको दोबारा से भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सैंपल अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है तो आप 5-10 मिनट के लिए दोबारा से इसको फिर से ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर काम करता है। इसके जो भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी प्रिंसिपल थ्योरी वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की वर्किंग। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।